इंजीनियरिंग बहुत कुछ सिखा देती है ना। तो इफ यू आर एन इंजीनियर यू मस्ट बी अवेयर। तो गॉन थ्रू इंजीनियरिंग तो तुम कहीं भी जाकर फिट हो सकते हो। Yes, experience was awesome. When you fly, you know that yes, everything is under your control. You can see the whole world. And you can fly like a bird. डूइंग योर लाइफ वॉट एवर यू आर डूइंग, जॉब तुम्हें मिली है जॉब करते रहो, कुछ भी करते रहो, घूमो फिरो, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, घूमना फिरना, सारी चीजें करते रहो और उसको साथ साथ चलते रहो, किसी भी चीज को होल्ड पे मत रखो। दैट्स व्हाट टॉट मी, दे आर ऑलवेज विद मी, दे विल ऑलवेज बी वंस अ सोल्जर ऑलवेज अ सोल्जर। हाउ Yes, आर यू? yes. I'm fine, sir. What about you? ओके, या आई एम आल्सो गुड। First of all, I would like to refer our audience and introduce about sir something, and as well as myself. Hello, everyone. Good evening to all. Under the lead of Rendezvous webinar on career guidance, today I, Gargi Shara, on behalf of SAE Collegiate Club Triple MUT chapter, presents our third guest, a person who served the nation and secured All India rank 6 in CDS 2011 and All India rank 11th in CDS 2012. Also qualified for SSB in FCAT 2011. A person trained from Indian Military Academy and Air Force Academy as well. A, a person who never backed down in guiding for the career that gives us plausible exultation and tremendous esteem for exams such as CDS and FCAT. How does it feel to be a part of an invaluable section of our country and how to cling onto the last hope of light in the darkest of time? Let's get answer to all such questions with none other than Ravi Sharan sir. All Welcome right, sir to our so event, Rendezvous. yeah, hello. So yeah, that was a very Josh wala introduction that you gave. So yeah, Yes sir. all right. So So I also wanted to join CDS and FCAT. I also wanted to appear for it, but I think I'm not eligible. okay, So so Q, why? What happened? Like, what is the reason for not being? because I have many physical issues, Okay, so okay. that is why. All right, all right. Sir, we will start with our first question. Yes. Sir, how will you describe your journey, and Mm-hmm. what and when did you start your preparation? All right. So I would describe my journey, which is like that was been the best period of my life till date, and preparation as such. I always wanted to join the defense forces, and because I come from a defense background, my father is still serving in the Indian Air Force. So defense, joining defense as an officer was the obvious career choice for me. And preparation as such, I had appeared for CDS. I got selected through the Combined Defense Services. So for the written part, there was not much preparation that I did. It was in 2011. अगर आज की CDS की बात करेंगे तो yeah, you need preparation. उस समय पे the level of that exam was not that much high, and I don't know, Yes, sir. maybe English, math, everything was fine only. So for written, I did not put in any special effort. And then comes the SSB. So if you're a defense aspirant and any other defense aspirant, if is online right now, you must be knowing about the service selection board procedure. So this is something which requires preparation. But in my case, I wanted to go for a formal coaching and everything, but my results were declared, and within 1 week, I had to go for my first SSB. So that plan also was not feasible for me. So first attempt, I went with a very basic preparation, and luckily, I got through the first attempt only. So this was how I got. So I can say that you were extraordinary. Not extraordinary, but yes, generally first attempt में, because SSB it does not require you to be extraordinary as such. But हाँ कुछ तो अच्छा किया ही होगा, so that I got a good rank also, and without any coaching and without any kind of preparation. So that was my first attempt. After that, I cleared the next CDS as well, and by that time I was already in the Indian Military Academy. I was under training there. Okay, okay. I had appeared for the written exam before joining IMA, and Okay. after that, then yes, FCAT was there. That was the very first FCAT that the Air Force was conducting. So that was also cleared. And for first time, I was unfit for Air Force. I joined the army, and then for the second attempt, I was declared fit for Air Force. So from army, I shifted to Air Force Academy, and I opted for helicopters. I was in the flying branch. I have done helicopter flying there, and that was
has been the best moments of my life. Flying as such is everyone's dream. I think flying is something, if being a pilot is Yeah, something which everyone wants, which everyone wants. तो everyone वो wants, कुछ yes. कुछ कुछ करियर ऐसे होते हैं जो कि हाँ उसमें किसी को कोई मतलब नहीं है. Every if you say any person XYZ you pick up you want to be a pilot, everyone will say yes. So that is one of those careers. So yeah, and then my flying experience was awesome, and I opted for helicopters specifically because helicopter flying is different from fighters and transports. It is more raw flying, and yeah, so that was pretty much about my flying experience and everything. So that particular period of time when I was in Forge, and the things that Forge taught me, they are always with me. They will always be, once a soldier, always a soldier. And when I apply those things in my civil life right now, I feel that yes, this is something that is the best thing that has ever happened to me, and it will always be there. So yeah, we can continue. So sir, do you think that engineering helped you in your journey? इंजीनियरिंग, हाँ मतलब इंजीनियरिंग एज सच यस. एक इंजीनियरिंग अगर तुमने इंजीनियरिंग करी है तो इंजीनियरिंग बहुत कुछ सिखा देती है ना. तो इफ यू आर एन इंजीनियर यू मस्ट बी अवेयर. आई वाज अ Yes, हॉस्टलर I am आल्सो, मैं हॉस्टल में mechanical, रहता. sir. यू आर मैकेनिकल. तो या सो या तो तुमको पता होगा कोई भी इंजीनियरिंग समथिंग, वो बहुत वर्सेटाइल हो जाते हैं बंदे, तो वो काफी कुछ सिखा देती है. So that overall, the 4 years of my graduation taught me many things. Before joining engineering, I was not a very बहुत इंटरेक्टिव काइंड ऑफ पर्सन में नहीं था. बहुत तो 4 साल में बहुत कुछ सीखा. स्टेइंग इन हॉस्टल अवे फ्रॉम फैमिली एंड ऑल, तो बहुत सारी चीजें जो कि इनडायरेक्टली एंड डायरेक्टली बोथ वेज इट हेल्प मी इन द इंटरव्यू एज वेल. तो वो जो एक ओवरऑल एटीट्यूड चेंज हो जाता है, दैट इज गुड. एंड वंस यू आर गॉन थ्रू इंजीनियरिंग तो तुम कहीं भी जाकर फिट हो सकते हो. दैट थिंग ऑलवेज हेल्प्स. So sir, you are saying that being an engineer is something that develops versatility inside us. हाँ या यस डेफिनेटली इट It डज makes एज us कम्पेयर टू एनी. versatile. या इट मेक्स यू वर्सेटाइल, वो है. Okay, इंजीनियर्स sir. कैन पिक देमसेल्व्स एनीवेयर. Anyway, yes, sir. Okay, sir. बट फॉर Defense दैट is said सिर्फ to be one of the पढ़ाई. reputed career. या And so, what do you think? What values do we need to become to be a part of defense? So yes, definitely the most reputable job, and values as such. First of all, I'll not say values. You need certain qualities, and for getting selected, the whole selection procedure is based on testing those 15 officer-like qualities. So if you know the 15 officer-like qualities, and if you have that, so values and everything is taken care of basically. And apart from this, yes, love for whatever you want to do, love for your country is one thing which will definitely motivate you. And see, as a we are there in this world, some kuch na kuch to as a profession we need to choose. ठीक है, वो करना ही पड़ता है ना. And so then to figure out कि which profession will keep you happy. And there are few professions which are not a routine thing, जैसे कि defense वाला. So some qualities that you need to be, you should be very versatile, which I told you. Then you need to have that josh, physically also, mentally also, that should be there. And yes, सबसे important is your love for the country. That will always, Yes, that is that's always the most required. important thing we all have. Yes. Okay, sir. Sir, we have some comments when we gave our Google form to our students. Mm-hmm. They were interested in knowing like the written exams of CDS and FCAT. Then what Mm-hmm. are the areas we should focus on? Means what are the areas we should like focus on to gain maximum number of marks to get into defense? Okay. So written के लिए I'll tell you, for CDS, if you are for defense exam, CDS की अगर हम बात करते हैं, so if you are in from engineering background, तो maths is taken care of. ठीक है, that is a normal maths आएगा 10th class का, वो तुम सब कर लोगे, कोई problem नहीं है. उसके बाद English, if you have basic knowledge of English where you are speaking in English and you are studying in English and all, so वो भी तुम कर लोगे. Problem आएगी तो सिर्फ और सिर्फ रीजनिंग वाले पार्ट में, सॉरी द जनरल स्टडीज वाले पार्ट में. जीएस इज General समथिंग, studies. या बिकॉज वो थोड़ा सा टच छूट जाता है व्हेन यू आर डूइंग योर ग्रेजुएशन एंड ऑल. तो जीएस के लिए बेस्ट थिंग टू डू इज, कोई भी आप यूपीएससी के, फर्स्ट ऑफ ऑल यू गो थ्रू ऑल द प्रीवियस पेपर्स 4-5 साल के. ठीक है, यू कैन इजिली अंडरस्टैंड द फॉर्मेट दैट इज बीइंग फॉलोड. फॉर्मेट इन टर्म्स ऑफ कौन से चीज से कौन से क्वेश्चन ज्यादा आते हैं. जीएस में बेस्ट थिंग इज टू गो फॉर एनसीईआरटी बुक्स. ठीक है, this is not UPSC civil services kind of exam. It is conducted by UPSC, but yes,
उसके क्वेश्चंस का लेवल थोड़ा हाई रहता है. इसमें यू नीड अ बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ जीएस. तो एनसीईआरटी पढ़ने की यू कैन फ्रॉम 6 to 12. द क्रक्स ऑफ बहुत सारे आजकल अवेलेबल है नेट पे जाके पढ़ने का. अब ये सब ना दिस थिंग्स आर देयर. क्रक्स ऑफ दिस summary of NCERT, gist of NCERT books and all. It is better you take them, go through that. So your GS part will be taken care of. GS also includes physics, chemistry, and everything. So that also will be part taken care by the NCERT books. Or current affairs. That you have to do at least last 1 year's current affair. कोई भी एक magazine उठा लो current affairs वाली and just go through that. The questions will not be very deep, but yes, they will come from various aspects of life of these things. So that is one thing. If you do this much for clearing the written part is more than enough. So defense mein that's yeah. More Sir, important you is want to the say that as an engineer, we just need to focus on GS part because that is the thing we are away from. We are not yes, having. Yes, yes. If you talk specifically about engineers, yes, this thing is there. yes, yes, sir. So we have our maximum audience engineer. That's why I'm just saying that. Okay, okay. So, sir, how to inculcate Hmm. officer-like qualities required for selection? When we appear for interviews, we need to Hmm. inculcate in ourselves the quality of officers because that is something different level. Hmm. So, sir, how would you like to suggest that how we should inculcate our officers like personality? Yes. So officer like qualities, as I told, 15 OLQs are there. Officer like qualities. Those qualities are Sir, something 15 which are what? 15 15 officer like OLQs. So these are the 15 OLQs. officer Okay, sir. like qualities. So people preparing for defense and SSB, they will be aware about this. So 15 OLQs are there, and I'll not get into the OLQs as such. It can you can easily Google that. And these 15 Okay. qualities will be tested throughout all the three tests, which are the psychology test, the group testing officers test, and the interviewing officer. Okay. Now, first of all, you need to understand the 15 officer-like qualities and what these qualities mean. Qualities are very simple. For example, an ability to influence the group, which is an OLQ there. Basic intelligence. Basic intelligence is normal intelligence, the way you solve problems. Effective intelligence is when you apply that basic intelligence to practical problems. That is effective intelligence. Leadership, stamina, courage. So very simple qualities. The thing you need to learn is first you understand these, then you do a lifeline analysis of whether you have these qualities or not. Go through your life's last 5 to 7 years, and each against each officer like quality, write examples of how and where have you portrayed those qualities. Once you have done that, you will be able to figure out which quality you have, which you are not having. Then comes the third part, which is the projection of the qualities in the interview. You might be a very courageous person, but you cannot simply say that I am courageous. You need to show that, and you need to show that within that framework of the test. So they will not ask you to do something courageous. They will not ask you to do some kind of कुछ ऐसा तुमको mission पे नहीं भेजेंगे in the interview as such. But the questions that are asked, so you need to learn that. So that is where most people lag. So you need to learn the art of projection basically. So this is a basic idea about how to go about preparation of SSP. SSBs. Okay, sir. So, what you would like to suggest, books that are needed to uh, qualify the defense test examinations? Like many students ask that what books we should prefer. Mhm. So for written part, books is मैंने इसका this Aryan Pathfinder करके एक book आती है which includes everything. Okay. That is for CDS. ठीक है. And I'm not very much in touch with written preparation right now, but yes, CDS के लिए that book is enough, more than enough. उसमें भी मैंने बताया जीएस के लिए तो यू डू दैट जिस्ट ऑफ एनसीईआरटी एंड प्रीवियस पेपर्स, दैट इज मोर देन इनफ. और इंग्लिश के लिए यू डोंट नीड एनी काइंड ऑफ बुक, बट इफ यू वांट यू कैन यूज दैट बुक ओनली. देन ये जो अपना सीजीएल का एग्जाम होता है, कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल एग्जाम स्टाफ सिलेक्शन कमीशन का, उसकी जो इंग्लिश की बहुत कुछ कुछ बुक्स हैं, आई डोंट नो दर नेम एज सच, यू कैन प्रेफर दैट. एंड मैथ्स यू डोंट नीड टू, फॉर इंजीनियर्स यू डोंट नीड टू प्रिपेयर. बेसिक मैथ्स आएगा 10th क्लास तक Yes, so का. that Yeah, yeah. So that will be taken care of. मेरा advice है focus more on GS part. That is something which you will generally feel that you are lacking. means you just want to say that CDS Pathfinder is enough for qualifying CDS and FCAT. हाँ, for GS portion, I think you can. It will be better if you go for NCRTs.
for GS portion. बाकी NCRTs. के लिए you will get, हाँ बाकी maths and English, reason English you will be able to figure out from there. ठीक है, so it is more than enough in these two things. So, like, what are the different academies in defense? Like, there are 4 different academies in defense, I think. Yeah, So, there are sir, what more. are their unique roles? Okay, so there are more than four. Three defense forces: Army, Navy, Air Force. Each of them have training academies. One is the National Defense Academy, which is in Pune. This is a common defense academy for all the three defense forces, and the people get selected through the NDA exam after 12th class. They go there for 3 years, and after 3 years, Army cadets will go to Indian Military Academy, Dehradun. Air Force cadets will go to Air Force Academy, which is in Hyderabad, Dundigal, and Naval cadets will go to the Indian Naval Academy. So basically, we have NDA, IMA, INA, AFA. Apart from this, there is something called Officers Training Academy. Officers Training Academy is for short service commissioned officers. It is in Chennai, and Sir, also it is officers in, training academy is also set for girls. Like few yes, yes, serious girls are like yes, yes. also. So I'll tell you about girls entry also. So OTA में है girls. If you as a girl, if you want to join defense force, so you cannot do that from after 12th class. You have to go after graduation. CDS का exam देना पड़ेगा, and after that CDS के through you can join the officers training academy for girls as a lady cadet. Then you can go for FCAT. You can go for INET. Navy maybe or Air Force maybe. Now it is for flying branch also. Flying maybe for fighters also it is now Yes, allowed. So yes, 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 so exactly. now everything is open for girls as well. Okay, that's really good news, I can say. Yes. And sir, did you took part in extracurricular activities during your college days? एक्स्ट्रा करिकुलर, हाँ एक्स्ट्रा करिकुलर तो आई यूज टू डू, मतलब मैं अपने शौक के लिए ऐसे मजे के लिए करता था तो, एंड आई वाज अ हॉस्टलर एज वेल। तो बहुत सारी चीजों में हमेशा देर एनीथिंग इज बीइंग ऑर्गेनाइज्ड इन द हॉस्टल, लेट इट बी कॉलेज फेस्ट एंड ऑल, तो वहाँ पे हम लोग का रोल हमेशा रहता ही था। अपार्ट फ्रॉम दिस आई एम नॉट, ऐसा नहीं मैं आई एम नॉट अ डांसर सिंगर काइंड ऑफ पर्सन, या आई यूज टू डू स्किट्स एंड ऑल कॉलेज में एंड सम प्लेज एंड ऑल। उसके अलावा द नॉर्मल ऑर्गेनाइजिंग पोर्शन ऑफ फेस्ट, दैट्स इट। बाकी और पढ़ाई वढ़ाई So you were टेक्निकल also interested in cultural and all. कल्चरल, यस, टू सम एक्सटेंट ओनली इन टर्म्स ऑफ एक्टिंग, दैट टू कॉमेडी प्लेज एंड ऑल, बाकी और कुछ नहीं। टेक फेस्ट एंड ऑल वो सब मुझे को कभी जमा नहीं, आई नो नो, मेरे को टेक्निकल वो मेरे को बीटेक की डिग्री जमी अच्छे से ओवरऑल वो, बट बीटेक नहीं जमी, मतलब द एनवायरमेंट जमा मुझे, बट यस आई एम नॉट वेरी टेक्निकल पर्सन। आई यूज टू समहाउ, आई स्कोर्ड वेल 68%, आई यूज टू स्टडी एंड ऑल, बट आई एम नॉट अ वेरी टेक्निकल पर्सन। Okay, sir. Okay. So there are many there are many WATs, SRTs, and story writing tests during SSBs. Sir, what should be the strategy of effective writing? How shall we practice those? ओके The सो, effective strategy for like storytelling and all. so someone who has asked this question must be preparing for SSB among your audience. So that is Yes, why sir. he's aware of all these things. So this is specifically because he has basic knowledge. So I'll be answering that. So SRT, WAT, see, all these are time bound tests where you have to answer within. For SRT, you will get 30 minutes, 60 SRTs you need to solve. Or WAT में you, for each word you will get 15 seconds. So जब भी टाइम बाउंड में कुछ भी काम करना है तो नीड टू प्रैक्टिस, ठीक है, सबसे बेसिक फंडा प्रैक्टिस ही, तो कोई बड़ी बात नहीं, कोई भी बता सकता है। बट प्रैक्टिस को कैसे करना है, फॉर दैट यू नीड टू सी, उसमें देखना पड़ेगा तुमको, पहले प्रैक्टिस करो, उसके बाद देन यू स्टार्ट टेकिंग फीडबैक। फीडबैक कैन बी टेकन फ्रॉम लॉट ऑफ दिस थिंग्स, यू कैन सेंड इट टू मी ऑल्सो फॉर योर फीडबैक ऑन आवर इंस्टाग्राम चैनल ऑल्सो, या फिर कोई भी तुमको मेंटर मिलता है, एंड देन यू सी वेदर यू आर राइटिंग इट इन द सेम वे और नॉट। तो बेसिकली जिसने भी ये क्वेश्चन पूछा है दोस्त, वो प्रैक्टिस ही एक तरीका है, एंड प्रैक्टिस विद इन टाइम बाउंड लिमिट। हम लोग क्या करते हैं एसएसबी की तैयारी में, बच्चे वो प्रैक्टिस, दे फोकस ऑन राइटिंग गुड रिस्पॉन्सेज, बट दे फॉरगेट दैट द गुड रिस्पॉन्सेज शुड बी रिटन विद इन लेस टाइम। तो फिर वहां पे जाके गड़बड़ हो जाती है व्हेन दे अपीयर इन द, तो दिस इज वन थिंग विच यू नीड टू प्रैक्टिस, टाइम बाउंड प्रैक्टिस के साथ आ जाएगा वो। ठीक है, तो शॉर्ट Okay, में तो sir. मैं So इतना ही बता basically, सकता हूँ practice उसका। is only the key. यस, Sir, प्रैक्टिस इज basically ऑलवेज practice द is की only फॉर the key. एनीथिंग। यस, Okay, sir. प्रैक्टिस एंड फीडबैक। Okay, sir. Sir, written SSBs and medical tests. Don't you think the entire process is kind of cumbersome?
काइंड ऑफ cumbersome. यस, प्रोसेस तो लंबा है थोड़ा सा, बट सी इफ यू सी दिस थिंग, बट इतना प्रोसीजर तो हर एक किसी भी टेस्ट में तुम जाओ, यू स्टार्टिंग फ्रॉम यूपीएससी सिविल सर्विसेज टू एनी अदर अपार्ट फ्रॉम द प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन, तो कोई भी गवर्नमेंट सेक्टर में अगर तुम देख रहे हो तो रिक्रूटमेंट एज सच थोड़ा सा बड़ा रहता है ये प्रोसीजर। ऑल्सो डिफेंस में दिस प्रोसीजर रिक्वायरमेंट, बिकॉज वहां पे एक ऐसी चीज है जहां पे वी कैन नॉट कॉम्प्रोमाइज विद द क्वालिटी। ठीक है, the only institute in country, organization country where which is a government organization but there is no reservation as such, the only organization जहाँ पे vacancies भले ही खाली चली जाएं but we will not select someone who is not deserving. Also the life is tough, the training is tough, you need to be physically and medically mentally fit, तो उसके लिए medical also has to be done seriously, 3 4 days 5 days it will take for the medical thing test, इतना लंबा टाइम कहीं नहीं लगता है। तो requirement of the defense forces is such and that is why it is long, but as compared to बाकी के गवर्नमेंट जॉब्स के मैं देखूंगा तो दिस इज अ वेरी आई वुड से वेरी फुल प्रूफ सिस्टम एंड वेरी एफिशिएंट सिस्टम। ठीक है, विद इन एवरी यू गेट 2 बैचेस एवरी ईयर, एनडीए सीडीएस, तो हर 6 महीने में प्रोसीजर खत्म हो जाता है। तो डोंट थिंक इट इज अ वेरी cumbersome प्रोसीजर, इट इज द रिक्वायरमेंट, दैट इज वाई थोड़ा सा ना लॉट ऑफ checks and balances Yes, are sir. there. Once a soldier, always a soldier. Yes. And that we need the spirit of soldier. That is the thing. Sir, how you think your life changed after being a person in defense? Yes, being a person in defense, as I told you, वो तो हमेशा now when you when I came back, I was still 24 and a half years of age. And then I started working in the corporate sector. So I realized कि जो मैंने वहाँ पे अपने दोस्तों को जो graduation के बाद people who started working in the corporate sector, and then these 2 3 years which I went, these 2 3 years changed me completely. When I came out, I was someone जिसको भी anyone who came to know that I am from a defense background, एक तो वैसे ही people start looking you with that different thing ना, that respect is there. Also लोगों को कहीं ना कहीं दैट वो जॉब के साथ वो जुड़ा हुआ है, लोगों को पता चलता है कि यस ही विल बी एन एफिशिएंट एंड अ डिसिप्लिन्ड पर्सन। ठीक है, तो यू स्टार्ट गेटिंग दैट, उससे थोड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बढ़ जाती है। ऑल्सो कॉन्फिडेंस, दैट इज समथिंग विच इज इंपॉर्टेंट। आई of experience, I neither had MBA degree nor experience, but still I was selected for that position just because of the confidence and the way I handled the interview. The तो spirit बहुत you कुछ, had. yes, and that experience helps you a lot. Right now also whenever whatever in real life whatever I'm doing, that is uh, somewhere everything has been influenced by my defense uh, experience. So how was your training? And how did you, sir, did you adapt it easily? Like, सबके लिए इतना आसान नहीं होता है उस पूरे सिनेरियो को अडॉप्ट कर लेना Mm-hmm. अपने लाइफ में। तो सर आपके लिए Mm-hmm. क्या एक्सपीरियंस था, आपने किस तरह से उससे लड़ा और कैसे आप आगे बढ़े चीजों में? So adapting is, कोई भी नई चीज के लिए तो is definitely difficult, and when you talk about defense forces, so training is tough, let it be any academy. So initial 6 months of training is tough. Initial 1 month there you are given there to acclimatize yourself, क्योंकि तुम कितने भी मेंटली स्ट्रांग हो कुछ भी हो, द ट्रेनिंग itself has been designed in such a way that you will not get time for yourself. You will be tested physically and mentally, because this is something ultimately you are being prepared for that one day where you will have to, even if required, you will have to sacrifice your life. So there are, and any small mistake that you do will have a consequence bearing on the life of other people. तो इसलिए टफ इतना किया गया है ट्रेनिंग को। एंड एनी पर्सन हु गोज फ्रॉम अ सिविल बैकग्राउंड, इवन इफ इज फिजिकली वेरी फिट, ही विल स्टिल हैव अ बेसिक प्रॉब्लम इनिशियल। एंड बट यस, वो मोटिवेशन जो रहता है ज्वाइन करने का, उसके बाद वहां पे जो कमराडरी होती है, जो ग्रुप बनता है आपका, एंड ऑल दिस थिंग्स विल हेल्प यू टू गेट अडेप्टेड, क्योंकि यू आर नॉट अलोन देयर। अगर ऐसी ट्रेनिंग में तुमको अकेला भेज दूं तो यू विल नॉट बी एबल टू डू। द होल कंसेप्ट इज द बॉन्डिंग थिंग, when everyone goes through hell together, they become very good friends and then you support each other. So that is the whole concept of So training. तो basically शुरू it's a में group मुश्किल रह, and you are like a chain, और एक कड़ी भी yes, अगर टूटती है तो दूसरे पे हाँ कॉन्सिक्वेंसेस हाँ, आते हैं। yes, the whole thing, the whole concept is based on this only. So शुरू में मुश्किल सबके लिए होता है, but yes, you get adapted to that, and once you are adapted then it is fine.
but initial 2-3 months are a difficult time, but you can easily, with friends, you can, with your group, you can easily get through that. Okay, so you flew like सर आपने एयरक्राफ्ट में लाइक आपने Yes. कहा कि आप एयरफोर्स में भी ट्रेनिंग कर Hmm. चुके हैं, तो सर वो आपने पहले क्वेश्चन में बता दिया था आपने कि आप बहुत ज्यादा लाइक एक्साइटेड है उस चीज को, हर इंसान का सपना होता Hmm. है कि Hmm. ऊंचाइयों को छूना, आसमान में उड़ना। Hmm. सर वो एक्सपीरियंस को आप किस तरह से बयां करना चाहेंगे इस इंटरव्यू में? हाँ, एक्सपीरियंस को मैं बयां ऐसे, इंटरव्यू में तो मैंने बयां तो मतलब यही है कि यस, वो मेरा सपना था। और वो एक मतलब अभी के लिए तो ऐसा है कि पहले तो ऐसा होता था कि ना, फ्लाइंग इज समथिंग जो बहुत ही मतलब इट वाज अ मिरेकल काइंड ऑफ थिंग। अभी ऐसा नहीं है। अभी तो हम लोग जनरली, एवरीवन इज, इफ यू आर नॉट फ्लाइंग एज अ पायलट बट यू आर फ्लाइंग एज अ पैसेंजर, तो वो एक जो पहले फ्लाइंग को देख के लोगों के बीच में एटीट्यूड था, वो तो नहीं रहा है अभी। बट यस, व्हेन यू फ्लाई, एंड मिलिट्री फ्लाइंग इज डिफिकल्ट एंड डिफरेंट फ्रॉम सिविल फ्लाइंग। तुम सिविल फ्लाइंग क्लब में जाओगे तो तुमको बड़े आराम से अच्छे से ट्रेन किया जाएगा। मिलिट्री फ्लाइंग इज डिफिकल्ट। वहां पे यू आर, तुमको कॉकपिट में मारा भी जाता है, एंड ना यू टू, तुम्हारे इंस्ट्रक्टर, क्योंकि कुछ भी छोटी तुमने गलती करी यू विल बी हिट। तो वो चीज कहीं पे भी नहीं होती है। एंड यस, दैट एक्सपीरियंस वाज ऑसम। when you fly, you know that yes, everything is under your control, you can see the whole world. And especially helicopter flying mein you can fly like a bird basically. So that, yes, that was an awesome experience. सर बेसिकली सर जब मैंने लाइक देखा तो उतना करीब से नहीं है कभी, लेकिन सर लाइक जब ये होता है 26 जनवरी होता है, उसका परेड होता है, Hmm. एंड वी सी लाइक वो लोग इतनी अच्छी कलाकारियां करते हैं, दैट्स रियली Hmm. इम्प्रेसिव। तो Yeah, you're वो एक talking अलग ही talking एक्सपीरियंस about होता है, the, सिविल फ्लाइंग yes, इज yes. समथिंग वेरी डिफरेंट फ्रॉम ऑल दैट। हाँ, सिविल फ्लाइंग इज अ काइंड ऑफ डिफरेंट फ्लाइंग, वो पीसफुल फ्लाइंग है। बट मिलिट्री फ्लाइंग में यस, बिकॉज थ्रिल इट है इज सर, मोर एक्साइटमेंट एडवेंचरस। है। यस, यस, इट्स ज्यादा मोर थ्रिल एडवेंचरस। है। यस, दैट थिंग इज देयर। सर हमारे ऑडियंस से अभी एक क्वेश्चन आया है। Sir, what was your हम्म। approach for group planning exercise GPE during your SSB? तो ग्रुप प्लानिंग एक्सरसाइज का भी जिसने पूछा है वो तैयारी कर रहा होगा एसएसबी की। एंड तो अभी उसको बेसिक आइडिया होगा ग्रुप प्लानिंग का। तो whosoever has asked this question, see, group planning में basically you will get 4 to 5 situations, लिमिटेड टाइम होगा, लिमिटेड रिसोर्सेज होंगे, तुमको करना है। तो बेसिक अप्रोच, बेसिक बताता हूँ, पूरा तो नहीं बता सकता हूँ। बेसिक अप्रोच शुड बी टू सॉल्व ऑल द प्रॉब्लम साइमल्टेनियसली। ऑल्सो डिवाइडिंग ऑफ द रिसोर्सेज शुड बी टेकन केयर ऑफ। जब तुम्हें लिखना है ग्रुप प्लानिंग के एक्सरसाइज, तो लिखने का एक अच्छा स्टैंडर्ड फॉर्मेट होना चाहिए, in which you write you are currently a group of 10 people at this point, and then dividing ourselves into this many groups, and then you write all these 3-4 points जैसे तुम सॉल्व कर रहे हो। then you come back at a common point और वहां से तुम मूव आउट करो। always write time and distance whenever you are writing the plan। तो उसके बाद also write how you are doing that particular task। also important is the discussion part। तो ग्रुप प्लानिंग का जब डिस्कशन होता है, दैट डिस्कशन इज डिफरेंट फ्रॉम द ग्रुप डिस्कशन जीडी, जो नॉर्मल जीडी होता है एसएसबी में। इन ग्रुप प्लानिंग डिस्कशन यू नीड टू फोकस ऑन फाइनलाइजिंग अ कॉमन प्लान। ग्रुप डिस्कशन वाले नॉर्मल जीडी में ऐसा नहीं होता है। तो दिस इज बेसिकली थोड़ा सा टेक्निकल क्वेश्चन। तो ग्रुप प्लानिंग बाकी लोग शायद नहीं समझ पा रहे होंगे, बट जिसने पूछा है मैं उसके लिए बता रहा हूँ। तो यहाँ पे तुझे क्या करना है ग्रुप प्लानिंग में, यू नीड टू एक्ट एज अ लीडर, एंड तुझे यू नीड टू टेक द ग्रुप टुवर्ड्स अ कॉमन सॉल्यूशन, जो कि जीडी में जनरली होता नहीं है। तो एक ये चीज है जिसके लिए जनरली बंदे मिस आउट कर जाते हैं। तो दीज आर सम ऑफ द बेसिक थिंग, बहुत वेगली मैंने बताया है, और बाकी डिटेल में तो आई कैन टेल यू पर्सनली ओनली। तो दिस इज सम थिंग्स यू नीड टू कीप इन माइंड। Okay, sir. Sir, there is a proposal to reduce the 5-day SSB to 3 days. And how will we do that? तो 5 डे प्रोसीजर को, यस, डी नोवो सिलेक्शन प्रोसीजर करके वन न्यू प्रोसीजर इज बीइंग इम्प्लीमेंटेड, एंड इट इज अंडर ट्रायल्स एट, इट वाज अंडर ट्रायल्स एट एसएसबी बैंगलोर। 5 दिन का प्रोसीजर थोड़ा लंबा हो जाता है, और सो इट इज नॉट फाइनेंशियली फिजिबल ऑल्सो। तो बहुत ज्यादा बंदों को हम जो है असेसमेंट नहीं कर पा रहे हैं उनकी, एंड वैकेंसीज आर गोइंग वैकेंट। तो कॉस्ट कटिंग और सारी फैक्टर्स को ध्यान में रखते हुए, टू इंप्रूव द एफिशिएंसी, वी आर कमिंग अप विद दिस 3 डे प्रोसीजर, जिसमें टेस्ट्स को थोड़ा सा ट्रिम किया जाएगा।
तो क्या क्या ट्रिम किया जाएगा एग्जैक्टली वो अभी तो क्लियर नहीं है, बिकॉज इट इज नॉट बीइंग अप्रूव्ड ऑफिशियली एज सच, बट यस इट विल बी 3 डे प्रोसीजर, जिसमें कि लेक्चरेट शायद हट जाएगा, उसके बाद जीडी एक ही होगा, देन instead of the writing complete sentences for WAT, you need to write only 3 words for each word that come to your mind. Stories, blank story might not be there. So people who are preparing, they will be able to figure out this thing. But yes, the procedure as such, और मुझे लग रहा है कि अभी शायद अगले 2-3 साल या टाइम लगेगा उसको इम्प्लीमेंट होने में, बट प्रिपरेशन की स्ट्रेटेजी ज्यादा नहीं चेंज होगी. इफ यू आर प्रिपेयरिंग, यू कीप प्रिपेयरिंग विद द नॉर्मल रूटीन ओनली. चेंज होने पे भी प्रिपरेशन के ऊपर कुछ फर्क नहीं पड़ेगा. Okay, sir. सर जब ना आपने ट्रेनिंग की थी, लाइक हाउ इज योर एक्सपीरियंस ऑफ ट्रेनिंग एंड व्हाट मिसकंसेप्शन पीपल हैव रिगार्डिंग इट, लाइक सिलेक्शन, लाइक हम लोग सोचते हैं कि ट्रेनिंग बहुत टफ होती है, तो ऐसी क्या मिसकंसेप्शन है लोगों के दिमाग में जो उन्हें डिफेंस में जाने से रोक रही हैं? आप इसके बारे में क्या मिस कहना चाहेंगे? हाँ, मिसकंसेप्शन जो चीजें रोक रही हैं डिफेंस में जाने के लिए, वो तो ये है कि एक तो लोगों को ऐसा लगता है कि डिफेंस की लाइफ में तुम्हारी पर्सनल लाइफ बिल्कुल खत्म हो जाती है. ठीक है, हम जो मूवीज देखते हैं वो मूवीज से बहुत दिक्कत होती है. ठीक है, अभी जैसे गुंजन सक्सेना मूवी आई थी, उस मूवी में क्या दिखाया है मुझे तो समझ नहीं आ रहा है उसका क्या, मतलब वो अब कोई एज अ डिफेंस ऑफिसर, एज एन एक्स पार्ट ऑफ एयरफोर्स लाइक कैडेट, आई इफ आई सी इट, मैं आई कैन फिगर आउट बहुत सारी गलतियां हैं. लेकिन अगर कोई प्योर सिविलियन उस मूवी को देखेगा, स्पेशली गर्ल्स, दे विल डेफिनेटली दे विल गेट कंफ्यूज कि क्या ऐसा ट्रीटमेंट होता है, विच इज नॉट राइट. तो एक तो ये है कि मूवीज में जो सा दिखाया गया है, दैट इज नॉट एग्जैक्टली हाउ इट हैपेंस. और यस, लाइफ इज टफ, थोड़ी सी मुश्किल है तुम्हें, बट यस व्हेन यू वांट टू जॉइन डिफेंस फोर्सेस, तो दैट इज पार्ट ऑफ योर वर्क, वो तुम्हारी जॉब प्रोफाइल का हिस्सा है ना. मूविंग अवे फ्रॉम योर फैमिली, थोड़ा दिन तुमको कॉम्प्रोमाइज सेक्रीफाइस करना पड़ेगा. इट विल नॉट बी ए 5 to 9, 9 to 5 काइंड ऑफ जॉब. फिजिकल फिटनेस, एडवेंचर, दिट विल बी पार्ट ऑफ. तो बहुत सारी चीजें तुम मिस आउट करोगे, बहुत सारी चीजें तुम्हें मिलेंगी, तो बैलेंस आउट हो जाता है इन द एंड. लाइफ में सब कुछ बैलेंस आउट हो ही जाता है. तो अभी तुम्हें, यू कैनॉट एवरी टाइम, कभी भी तुम्हारा मन किया तो तुम उठ के कहीं पे भी नहीं जा सकते हो घूमने के लिए अपने दोस्तों के पास, क्योंकि लीव्स का रेस्ट्रिक्शन होगा. बट फौज में तुम जो दोस्त बनाओगे, वहां की जो एनवायरमेंट होगी, दैट विल काउंटर दैट. तो अगर इफ यू वांट टू जॉइन डिफेंस फोर्सेस, नॉट, डोंट स्टॉप योरसेल्फ बिकॉज ऑफ दिस मिसकंसेप्शंस, स्पेशली जो मूवीज में तुम देखते हो. टॉक टू समवन हु हैज सर्व्ड इन द फौज, टॉक टू समवन हु इज सेलेक्टेड फॉर दैट, एंड देन यू टेक अ डिसीजन, एंड इट इज वर्थ इट. कोई ना, तो डोंट थिंक कि उसमें कोई नुकसान है. सर वैसे ऐसा सिनेरियो देखा गया है, जैसे सर आप बता रहे हैं हम्म. कि आपके फादर भी डिफेंस में हैं ऑलरेडी, तो आपका इसी हम्म. वजह से इंटरेस्ट आया। तो सर इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे कि ऐसा ही अक्सर मतलब ये चीज़ देखा गया है कि जिसके हम्म. पेरेंट्स होते हैं वो उनकी वजह हम्म. से ज़्यादा अडॉप्ट करते हैं इन चीज़ों को, लेकिन फिर वहीं पे जहाँ पे सिविलियंस होते हैं जिनके जनरेशन में कोई भी इंसान नहीं होता है डिफेंस में, वो लोग नहीं जा पाते हम्म. हैं उस जगह। तो सर इसके बारे में हाँ, आप क्या कहना चाहेंगे? yes, इससे if you look at the number of people who are in the academies, जो ट्रेनिंग कर रहे हैं, कोई भी बैच को आप देखते हो, तो उसमें एटलीस्ट 30-40% बंदे ऐसे रहते हैं जो कि डिफेंस बैकग्राउंड से होते हैं. ठीक है, और विच इज ऑब्वियस, इफ यू हैव सीन योर फादर और योर पेरेंट थ्रू आउट योर लाइफ सर्विंग इन डिफेंस, तुमने वहां की लाइफ देखी है, तो दैट इज एन ऑब्वियस करियर ऑप्शन फॉर यू. ठीक है, डॉक्टर का बेटा डॉक्टर बनता ही बनता है, आपको इंटरेस्ट कहीं ना, वो उसने वो लाइफ देखी है. एक्टर का बेटा एक्टर बनता है, बिजनेसमैन का बेटा बिजनेस, तो फौजी का बेटा है तो वो एक इंटरेस्ट, बेटा या बेटी है उसको इंटरेस्ट आएगा ही फौज में. तो लेकिन यह सिलेक्शन प्रोसीजर एज सच में कोई फर्क नहीं है. ऐसा नहीं है कि आप उस बैकग्राउंड से हो तो आपको कोई बेनिफिट मिलेगा, ऐसा कुछ भी नहीं है. और आजकल तो इनफैक्ट सिविलियंस बहुत आ रहे हैं, तो आई वुड से कि ये 30-40% ही हैं, बाकी 60% तो सिविलियंस ही हैं. तो आई थिंक द क्वेश्चन व्हाट ही वांटेड टू आस्क मे बी वाज दिस, कि शायद कि क्या कुछ बेनिफिट होता है इफ यू आर फ्रॉम अ डिफेंस बैकग्राउंड. तो ऐसा कुछ भी नहीं है, यू विल नॉट गेट एनी स्पेशल ट्रीटमेंट एज सच. और इसका इंटरेस्ट होता है, उसको कहीं ना कहीं से इंटरेस्ट लग ही जाता है, चाहे वो तुमको मूवी देख के लगा हो, चाहे वो तुमको कैसे कुछ भी हुआ हो. कम हाउ इफ यू आर मोटिवेटेड, तो तुम कर लोगे. तो वो हो जाती हैं चीज़ें। यस. सर एक और क्वेश्चन अभी कमेंट सेक्शन से आया है हमारे पास। सर आर एनडीए गाइज प्रिफर्ड फॉर फाइटर ब्रांचेस इन एयर फोर्स एकेडमी ओवर सीडीएस गाय?
नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। देर इज नो, मेरे को भी ऐसा, व्हेन आई वाज प्रिपेयरिंग एट दैट टाइम आई यूज्ड टू थिंक दिस थिंग कि मेरे को तो ऐसा लगता था कि इफ आई एम नॉट फ्रॉम एन एनडीए, मैं एनडीए से नहीं सीडीएस से हूँ, तो मुझे शायद फाइटर्स का ऑप्शन मिलेगा ही नहीं, मुझे ट्रांसपोर्ट या हेलीकॉप्टर से मिलेगा। बट इट इज अच्छा। नथिंग अबाउट, ऐसा कुछ भी नहीं है। यू विल गो देयर, यू विल हैव 6 months ऑफ ट्रेनिंग। आफ्टर दैट यू विल बी गिवन योर चॉइस टू फ्लाई फॉर, अभी पहले एक बार बीच में ट्राइफर्केशन शुरू हुआ था जिसमें तुम हेलीकॉप्टर ट्रांसपोर्टर फाइटर्स चूज करते थे। अब तुम चूज करोगे फिक्स्ड विंग एंड हेलीकॉप्टर्स। और फिक्स्ड विंग वाले बंदे फिर बाद में फाइटर ट्रांसपोर्ट्स और फाइटर्स को चूज कर सकते हैं। तो ये जो चॉइस होता है विच इज आस्क फ्रॉम यू, तुम चॉइस देना पड़ता है। मेरिट प्रिपेयर होती है जो तुम्हारे बैच की मेरिट रैंक लिस्ट होती है, और नॉर्मल जैसे अपने कॉलेज काउंसलिंग होती है, एज पर योर रैंक एंड योर रिक्वायरमेंट दे विल गिव यू। देर इज नो रिस्ट्रिक्शन फॉर गोइंग इनटू फाइटर्स फॉर सीरियस गाइज। सर तो ठीक है। सर आपको क्या लगता है सर कि बोर्ड्स मार्क्स, सर बहुत सारी कॉम्पिटिशन्स ऐसी होती हैं जहाँ पे बोर्ड मार्क्स आपकी कॉलेज के सीजीपीएज जो है बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो सर आप क्या कहना चाहेंगे कि एक सीडीएस के थ्रू एक ऑफिसर, एक आर्मी ऑफिसर या फिर एक फोर्स ऑफिसर बनने के लिए क्या ये सारी चीज़ें बहुत ज़रूरी होती हैं? नहीं नहीं, बहुत जरूरी नहीं होती हैं। बहुत जरूरी तो होती हैं सिर्फ क्वालिटीज जो तुम्हें OLQs हैं वो जरूरी होती हैं। और अगर तुम्हारे मार्क्स अच्छे हैं 10th में 12th में, तुम पढ़ाई अच्छी कर रहे हो, तो डेफिनेटली यू आर एन इंटेलिजेंट पर्सन, यू आर अ स्टूडेंट हु इज टेकिंग स्टडीज सीरियसली। तो वो एक एडवांटेज डायरेक्ट ऐसे नहीं रहेगा, बहुत बड़ा एडवांटेज नहीं रहेगा, बट यस इट विल गिव अ गुड इंप्रेशन टू द पर्सन हु इज इंटरव्यूइंग यू। बट रिक्वायरमेंट जैसे कि मैंने बताया, इट्स ऑल अबाउट OLQs, एंड OLQs में मेरिट एज सच कोई डायरेक्ट रिक्वायर वो नहीं है। तो तुम्हारे मार्क्स अगर कम भी हैं, बट यस कंसिस्टेंसी इज समथिंग विच इज रिक्वायर्ड। तो अगर तुम्हारे 10th में मार्क्स अच्छे हैं, फिर 12th में एकदम कम हो गए, फिर ग्रेजुएशन में बढ़ गए, या फिर 10th 12th ग्रेजुएशन में कम होते जा रहे हैं, अगर वो मार्क्स तुम्हारे ऊपर नीचे हो रहे हैं, देन यू विल बी अ क्वेश्चन आस्क्ड अबाउट योर कंसिस्टेंसी इन योर परफॉर्मेंस इन स्टडीज। Otherwise, no problem with that. If you are scoring 65% throughout 10th, 12th graduation, you are not a very intelligent, very serious student in terms of studies. But yes, that will not make any difference to your performance in SSB as such. Sir, there is question like sometimes we may need motivations like several attempts. कई बार हम लोग कई बार अटेम्प्ट करते हैं पर हमारा सिलेक्शन नहीं हो पाता है। तो सर उसके लिए हमें क्या, किस तरह का मोटिवेशन अपनी लाइफ में इनकलकेट करना चाहिए कि हम उस चीज के लिए कंसिस्टेंट बने रहे? जैसे आपने कहा कि कंसिस्टेंसी मेंटेन होनी चाहिए मेरे हम्म ग्रेजुएशन के मार्क्स में, तो सर उस मोटिवेशन को अपने आप को हम्म लाइक उस लेवल पे जाने के लिए क्या हम लोग अपने आप को मोटिवेशन दें कि हम कर सकते हैं ये चीज? आप क्या कहना चाहेंगे इसके ऊपर? हाँ, so yes, motivation, you will, if you see SSB में स्पेसिफिकली बहुत सारे हार्डकोर रिपीटर्स जिनको हम कहते हैं, पीपल गेट रिकमेंडेड, जो कि 21 21 22 22 अटेम्प्ट में भी रिकमेंड होते हैं। एक तो ये है कि आपको अटेम्प्ट बहुत सारे मिलते हैं। अगर आप ग्रेजुएट हो, बीटेक ग्रेजुएट हो, तो आपको डायरेक्ट एंट्री, टेक्निकल एंट्री, शॉर्ट सर्विस सब मिला जुला के साल में आप चाहो तो 4 5 SSB दे सकते हो। तो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम ना, एज फैक्टर के हिसाब से आप, इफ एनी पर्सन इफ ही इज एन नॉर्मल ग्रेजुएट ऑल्सो, मिनिमम 6 7 अटेम्प्ट तो हर कोई बंदा दे ही सकता है। और इसमें बहुत सारे बंदे जो हैं हार्डकोर रिपीटर्स होते हैं जो बहुत सारे अटेम्प्ट्स लगाते हैं। मोटिवेशन तो यार यही है, मोटिवेशन किसी भी चीज को करने का यही होता है कि तुम्हारा एक एम होना चाहिए लाइफ में। तुम्हारा एम है कोई भी चीज करना, फौज फौज ज्वाइन करना, नाउ यू प्रिपेयर फॉर दैट। प्रिपरेशन में कोई कमी मत छोड़ो, अपियर करो। नहीं क्लियर होता है, जब तक नहीं होता है करते रहो, लाइफ को उसके लिए होल्ड पे मत रखो। और स्पेशली डिफेंस वाला SSB एक ऐसी चीज है जिसके लिए आपको, जैसे बंदे ना यूपीएससी सिविल सर्विस तैयारी करते हैं, सब कुछ छोड़ छाड़ के 2 3 4 साल बैठ जाते हैं, सिर्फ तैयारी करते हैं, जॉब नहीं कर रहे हैं, कुछ भी नहीं कर रहे हैं, उस एग्जाम के लिए वो रिक्वायर्ड है। डिफेंस के लिए, SSB के लिए और रिटर्न के लिए रिक्वायर्ड ही नहीं है। तो तुम कोशिश करते रहो, अभी तुम फाइनल ईयर से स्टार्ट करो प्रिपरेशन करना रिटर्न की। क्लियर होता है अच्छी बात है, देन गो फॉर SSB। SSB क्लियर होता है वेल एंड गुड, नहीं तो कीप डूइंग योर लाइफ वॉट एवर यू आर डूइंग। जॉब तुम्हें मिली है, जॉब करते रहो, कुछ भी करते रहो, घूमो फिरो, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, घूमना फिरना, सारी चीजें करते रहो, और उसको साथ साथ चलते रहो, किसी भी चीज को होल्ड पे मत रखो। तो मोटिवेशन और अल्टीमेटली यही है कि बस यू हैव टू कीप गोइंग। और बहुत ज्यादा सीरियस नहीं होना है लाइफ में, मतलब कि ऐसा कोई भी चीज को लेकर कभी मत सोचो, नथिंग इन लाइफ इज एज सीरियस एज इट अपियर्स टू बी। कि मेरे को ये करियर नहीं मिला तो मैं तो बर्बाद हो जाऊंगा, मैं क्या करूंगा। बहुत सारे लोग होते हैं, फिर वो लोग ओवर प्रिपेयर करते हैं। वो उनको लगता है कि यार नहीं, मुझको यूनिफॉर्म ही चाहिए, मुझे फौज में ही जाना है। वो नहीं रिकमेंड होगा ना, तो वो
बाकी सब चीजें छोड़ देगा, बाकी वो लाइफ में ना कहीं घूमेगा, कुछ भी करे, ही विल गेट दैट, कोई फर्क नहीं, कुछ नहीं पड़ता है लाइफ में। तो वो एटीट्यूड मत रखो, एटीट्यूड ये रखना है कि यस दिस इज माई एम, उस एम की तरफ मैं जा रहा हूँ, और रास्ते में जो कुछ भी आएगा आई विल कीप एंजॉइंग इट। तो दिस इज वन थिंग। बहुत सारे लोग Yes. पूछते हैं सर जॉब छोड़ दूं क्या प्रिपरेशन के लिए, तो नो नो नीड टू डू दैट, तुम्हें करने की जरूरत ही नहीं है वो सब। सर एक और क्वेश्चन आया है कमेंट सेक्शन से। थ्रो सम लाइट ऑन यूनिवर्सिटी एंट्री सीम यूईएस फॉर आर्मी। यूईएस, हाँ यार यूईएस का मेरे हिसाब से दिस एंट्री इज गेटिंग स्टॉप, वो एंट्री बंद होने वाली है, शायद वो हो गई है या फिर होने वाली है, मुझे नहीं पता है। लेकिन जो मुझे, अगर अगर वो एंट्री अभी चालू है यूनिवर्सिटी एंट्री स्कीम की, तो यूनिवर्सिटी एंट्री स्कीम इज यू विल बी गोइंग इन प्री फाइनल एंड फाइनल ईयर ऑफ योर ग्रेजुएशन। इंटरव्यू विल बी कंडक्टेड बाय आर्मी इन डिफरेंट कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज में इंटरव्यू होता है। इफ यू गेट सेलेक्टेड फॉर दैट यू विल बी, प्रिलिमिनरी राउंड विल बी कंडक्टेड इन द कॉलेज ओनली, और basic questions related to SSB, related to your life, related to your graduation they will ask. You clear it, then you will be called for SSB तुम्हारे क्लियर हो जाता है। इट इज अ वेरी गुड एंट्री इन टर्म्स ऑफ यस, तुम ग्रेजुएशन खत्म होते ही डायरेक्टली तुम ज्वाइन कर लोगे एकेडमी को, तुमको तुम्हारे कुछ इसमें अमाउंट मिलता है विच इज द कॉलेज फीस दैट यू हैव पेड, यू विल गेट रिइंबर्समेंट फॉर दैट, वो एक बेनिफिट है। एंड टेक्निकल एंट्री है, यू विल गेट सीनियोरिटी, तो ये सब चीजें हैं। बट आई नीड टू चेक वेदर दिस एंट्री स्टिल रेलिवेंट, अभी चल रही है या बंद होने वाली है। इफ इट इज देयर इट इज अ वेरी गुड एंट्री फॉर इंजीनियर्स, यू शुड गो फॉर दैट। Sir, how do you see the current scenario with Chinese and Pakistani army joining their hands? Is India capable to face this joint attack? ये तो बहुत हाई स्ट्रेटेजी लेवल का क्वेश्चन पूछ लिया, इसका जवाब तो मैं क्या बहुत सारे लोग नहीं दे पाएंगे, बट यस बेसिक बताते हैं। बेसिक इज दिस कि यस सी को तुम कितने कैपेबल हो नहीं हो वो तो दैट इज अ डिफरेंट थिंग। अभी अगर सिचुएशन ऐसी है दैट चाइना इज थ्रेटनिंग यू, या फिर फॉर दैट मैटर एनी अदर कंट्री, तो बंदा कोई भी बंदा हो जिसको एक नॉर्मल अपने लाइफ में इंप्लीमेंट करके देखो। अगर तुम मान लो कि तुम एक नॉर्मल बंदे हो, यू आर नॉट अ वेरी हैवी बंदा है, बहुत स्ट्रांग नहीं हो तुम, ठीक है। इन आर केस इंडिया इज वेरी स्ट्रांग, लेकिन अगर कोई और भी कंट्री है जो बहुत ज्यादा स्ट्रांग नहीं है और कोई उसको थ्रेटन करता है, तो एक टाइम होता है जहां तक बंदा खेलता है, उसके बाद यू नीड टू रिटेलिएट। तो जब इंडिया तो स्टिल इट इज कैपेबल ऑफ रिटेलिएटिंग इवन इफ इट इज अ टू फ्रंट वॉर, स्टिल वी कैन डू, वी आर कैपेबल इन टर्म्स ऑफ फाइटिंग इफ रिक्वायर्ड, बट बेस्ट है कि उसकी जरूरत ना पड़े। एंड बाकी चीजें सब बड़े लोगों पे छोड़ दो, तुम्हें एज एन एस्पिरेंट सिर्फ इतना पता होना चाहिए कि हाँ हाँ वो पीपल कीप आस्किंग दिस थिंग। पहली बात तो ये सब चीजें तुम सबको समथिंग इज रॉन्ग। सो पहली बहुत सारे लोग मेरे को डायरेक्टली मैसेज करके वो इंस्टा पेज पे पूछते रहते हैं सर क्या होगा अभी, अरे भाई हमको नहीं पता है क्या होगा, नो वन नोस, ओनली पर्सन हु आर डायरेक्टली इन्वॉल्व इन दैट दे आर अवेयर ऑफ दिस थिंग। Directly involved ठीक in है, that, they यस can यस know the यस। scenario. Yes, sir. So, what is the status of sports in defense? स्टेटस ऑफ स्पोर्ट्स इन डिफेंस तो मेरे को समझ नहीं आया, स्टेटस मतलब कैसे बोले कि वेदर यू विल गेट चांसेस Like, फॉर। sir, yeah, yeah. हाँ, तो So, वो तो like, है if you are डेफिनेटली यू। involved in sport, हम्म। सर उसकी मतलब क्या, मतलब उसका क्या सिग्निफिकेंस है? अगर आप एक स्पोर्ट पर्सन है और आपने नेशनल इंटरनेशनल पे खेला है, तो मतलब हम्म। क्या उसका सिनेरियो है, उसके बारे में आप यस, बताइए कुछ। इफ एक तो इफ यू आर स्पोर्ट्स पर्सन तो डेफिनेटली तुम थोड़े से एज कम्पेयर टू एनीवन एल्स फिजिकली फिट रहते हो, और बहुत सारी क्वालिटीज तुम एज ए स्पोर्ट्स पर्सन सीखते हो, टीम स्पिरिट, टीम में काम करना, लीडरशिप है ना, फिजिकल फिटनेस, ये सारी चीजें आ जाती हैं, तो वो तुम्हें वैसे हेल्प करता है तुम अगर नॉर्मल भी स्पोर्ट्स खेल रहे हो। इफ यू आर प्लेड एट अ प्रोफेशनल लेवल, सो डायरेक्टली सिलेक्शन में ऐसा कुछ हेल्प नहीं मिलेगा कि तुम्हें स्पोर्ट्स के नंबर अलग से मिल रहे हैं या फिर एक्स्ट्रा कुछ मिल रहा है, बट यस इट विल गिव अ वेरी गुड इंप्रेशन, इट विल हेल्प यू थ्रू योर क्वालिटीज। उसके बाद अगर तुम ये पूछना चाहते हो कि स्पोर्ट्स परस्यू कर सकते हैं कि नहीं फौज में जाने के बाद, तो यस यू कैन डू दैट। बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं कि तुम कितने अच्छे खिलाड़ी हो, और वहां पे तुम पोस्टेड हो, कौन सी यूनिट है, क्या तुम्हारा आर्म्स है, तो बहुत सारी चीजें हैं। बट यस इफ यू आर स्पोर्ट्स सीरियस स्पोर्ट्स पर्सन यू विल गेट लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटीज ऑफ डूइंग दैट इन डिफेंस। Can short service commission be converted into permanent commission?
what its eligibility? Short service commission, yes, it can be converted to permanent commission. Short service commission is initially for 10 years. Then after 10 years, you can extend it to 14 years, 10 plus 4. And after 14, you can also extend it further. And possibilities are good because definitely we need more and more officers. So overall requirement hai hame officers ki. And once you have put in so much amount of service, no one wants you to leave. So yes, they will you will get opportunities. Yes, your record should be good, then everything will be taken care of. कितनी vacancies हैं, but overall general ये है कि yes, you will get opportunity. तो अगर short service commission है तो परमानेंट कमीशन का तुमको फुल चांस मिलेगा. सो डोंट थिंक, क्योंकि कुछ बंदे ये भी सोचते हैं कि शॉर्ट सर्विस कमीशन के बाद पीसी मिलेगा नहीं मिलेगा, 10-14 साल के बाद अगर मैं फौज से वापस आ गया तो मुझे बाहर आके क्या करूंगा एंड ऑल. कोई प्रॉब्लम नहीं है, यू कैन गो एंड you will get chances for conversion to PC. Sir, please suggest some tips for screening process. स्क्रीनिंग प्रोसेस के लिए शॉर्ट में बताता हूँ. स्क्रीनिंग का एक मेरा स्क्रीनिंग प्रोसेस में ठीक है अभी पूछा है, आई विल क्विकली डू इट क्योंकि डिटेल में तो नहीं बता सकता हूँ. स्क्रीनिंग में सी यू हैव 4 थिंग्स. वन इज द OIR रेटिंग विच इज द रीजनिंग का पार्ट. रीजनिंग का जो पेपर होता है तो you can do well in that. Even if you have not written a very good story, at least narrate it confidently and then discuss it confidently. तो ये 4 चीजें जो हैं, 4 में से 3 चीजें हमेशा तुम्हारे कंट्रोल में रहती हैं. एक चीज है जो हो सकता है कि तुम्हारे कंट्रोल में ना हो, विच इज द स्टोरी दैट यू हैव रिटन. पर उसमें भी फॉर्मेट ऑफ द स्टोरी शुड बी गुड. इफ यू वांट टू लर्न हाउ टू राइट अ TAT स्टोरी, यू कैन वॉच अ वीडियो ऑल्सो इन यूट्यूब पे. मैंने डाला है, बहुत पहले का वीडियो है. तो दिस इज द बेसिक ऑफ स्क्रीनिंग. बाकी इन केस स्क्रीनिंग आउट हो जाते हो तो डोंट फील कि यू आर नॉट फिट फॉर ज्वाइनिंग डिफेंस फोर्सेज एज सच. कोई क्वालिटी टेस्ट नहीं हो रही है. इट्स जस्ट अ प्रोसेस टू reduce the number of aspirants. Sir, एक और क्वेश्चन है सर कमेंट सेक्शन से. Is there any difference in SSB recommendation that is between candidate from defense background / NCC and the candidate without defense background? सर लाइक कुछ बच्चे होते हैं अपने कॉलेज डेज में एनसीसी वगैरह ज्वाइन करते हैं, तो सर उनको क्या प्रिविलेजेस मिलती हैं अगर वो जाते हैं, प्रेफर करते हैं चीजों को? तो प्रिविलेज तो कुछ नहीं मिलती है. प्रिविलेज यही है कि एक एंट्री आपको एक्स्ट्रा मिल रही है. आप सपोज इफ यू आर इन एनसीसी एंड यू आर अ ग्रेजुएट ऑल्सो, तो तुम एनसीसी स्पेशल एंट्री स्कीम से जा सकते हो. वो सिर्फ वही बंदे जा सकते हैं जो एनसीसी में हैं, C सर्टिफिकेट होल्डर है. तो एक तुम्हें चांस एक्स्ट्रा मिल रहा है, मतलब एक वो मिल रही है एक्स्ट्रा वो एंट्री मिल रही है. उसके अलावा तुमने फौज की लाइफ को एक बेसिक देखा है, एनसीसी में तुम रहे हो तो तुमको एक बेसिक आइडिया है फौज कैसे काम करती है. So this will give you an edge over other aspirants in terms of yes, what is expected out of you. तो कहीं ना कहीं if I am an interviewing officer and I know that yes you are an NCC cadet, तो मुझे इतना पता हुआ कि हाँ बेसिक चीजें फौज के बारे में पता है, बेसिक एनवायरमेंट इसको पता है, तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा मोटिवेशन जो है एज कम्पेयर टू एनी अदर पर्सन इसका ज्यादा है. एंड जो तुम एनसीसी में 3 साल में सीखते हो वो डेफिनेटली तुमको हेल्प करता है इन इनडायरेक्ट वे, तुम्हारी क्वालिटीज और ये सब डेवलप करके. ठीक है, उसके अलावा एज सच तुम्हें स्पेशल कुछ भी ट्रीट नहीं किया जाएगा, स्पेशल एडवांटेज कुछ भी नहीं दिया जाएगा. मतलब सर ऐसा मतलब लाइक हम जा सकते हैं बट कोई ऐसा स्पेशल एडवांटेज उस चीज का है? हाँ, स्पेशल एडवांटेज कुछ भी नहीं है. दैट विल नॉट बी देयर. वो जो एडवांटेज है वो इट विल ऑटोमेटिकली हैपन. अगर तुम लोग अच्छे से एनसीसी तुमने किया है तो बहुत सारी क्वालिटीज, तुम्हारा नेचर अपने आप वैसा बिल्डअप हो जाएगा, तो तुम अपने आप अच्छा परफॉर्म करोगे. सर व्हाट चेंज यू विश टू सी इन आर्मी? सर जैसे कि आप रहे हैं उस फील्ड में, तो कुछ चीजें होती हैं जो इंसान को लगता है कि ये चेंजेस होनी चाहिए यहाँ पे. सर तो आप कुछ चेंजेस रिकमेंड करना चाहेंगे? चेंजेस रेकमेंड तो ये तो बहुत आई वुड से कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन में यस चेंजेस तो रहते हैं. कुछ चीजें टेक्निकल लेवल पे जो हो सकती हैं, चेंजेस विल नॉट डिस्कस अबाउट दैट, बट ओवरऑल अगर मैं बात करता हूँ तो हाँ टेक्निकली एज सच यस चेंजेस जो हो रहे हैं. और अभी जैसे हम बिकमिंग सेल्फ रिलायंट एंड ऑल, दिस इज समथिंग विच शुड बी मोर फोकस्ड ऑन. उसके अलावा एडमिनिस्ट्रेटिव पार्ट और वो सब के ऊपर आई वुड नॉट कमेंट, बट यस बहुत कुछ नहीं है चेंज करने को. बहुत कुछ इन द सेंस इट इज बाई फार द बेस्ट ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द कंट्री. तो लोग जो वहां पे हैं
द वे द पीपल आर देयर दे आर सर्विंग, उसके बाद ओवरऑल एडमिनिस्ट्रेशन, इट इज गुड। कुछ छोटी मोटी चीजें हैं, वो तुम लोग को ऐसे समझ में नहीं आएंगी until unless you are a part of फौज, but otherwise I think on technical aspects being self reliant is something which we can do, and all these things जो tour of duty आया है, जो प्रपोज कर रहे हैं, तो ये सब चीजें आई वुड से दिस इट इज अ गुड थिंग दैट लॉन्ग टर्म में ये हेल्प करेगा। ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है। So there are many instances that some candidates are not selected due to minor medical reasons. So how strict is the criteria? सर कभी कभी मेडिकल रीजंस की वजह से लोग सेलेक्ट नहीं हो पाते हैं। तो मेडिकल क्राइटेरिया इज स्ट्रिक्ट ओनली, बट सबसे ज्यादा स्ट्रिक्ट है एयरफोर्स के लिए, फ्लाइंग ब्रांच के लिए। तो फ्लाइंग इज समथिंग कि उसमें ऊपर से लेके फ्रॉम योर आईज एंड एवरीथिंग शुड बी परफेक्ट, और वो इसीलिए रीजन है कि बहुत सारे बंदे उसमें अनफिट हो जाते हैं। और यू विल सी जब फाइनल मेरिट लिस्ट आती है तो जनरली 4 5 6 इतने ही बंदे रहते हैं सीडीएस की मेरिट लिस्ट में। व्हेन आई गॉट सिलेक्टेड दैट टाइम ओनली 13 ऑफ अस ज्वाइन, 32 वैकेंसीज थी, लेकिन 13 ही बंदे थे जो फिट हो पाए थे। तो एक तो एयरफोर्स में तो काफी कुछ है, मेडिकल डिटेल्स में नहीं जा सकते हम, बट यस आर्मी वाला ऑल्सो मेडिकल इज डन नाइसली, लेकिन कोई बहुत सीरियस कुछ प्रॉब्लम है तो मैं नॉक नी स्प्लैश फुट ऐसे कुछ है तो यू विल गेट परमानेंट रिजेक्शन। बाकी अदरवाइज कोई मेडिकली कॉम्पिटेंट बंदा है जो वही तुमको अच्छे से बता पाएगा, एंड दैट्स इट। मेडिकल के बारे में तो उतना ही। कोई तो पूछ रहा है कलर ब्लाइंड क्राइटेरिया, पूछिए प्लीज यस मैम। सर, इसीलिए मैंने तुषार, पूछा। हाँ यार कलर Because for ब्लाइंड me, क्राइटेरिया। knee injuries, color blind, -3.0, like आपका आई साइट, ये सब चीजें पूछ रहे हैं सर। दैट्स देख लाइक आई साइट के लिए तो इफ एयरफोर्स में तो फ्लाइंग में तो पॉसिबल नहीं है आई साइट अगर तुम्हारी है फिट फॉर फ्लाइंग, बट फॉर फॉर दिस थिंग आर्मी और कुछ उसमें आई साइट का कुछ तो लिमिट है। एग्जैक्टली मुझे नहीं पता, बट इसी रेंज में है, शायद 2.5 है, 2.75 या 3 कुछ है, वो नोटिफिकेशन में मिल जाएगा। ठीक है। और उसके अलावा कलर ब्लाइंड कुछ तो उनका ये रहता है ना, सीपी रहता है कलर, वो कुछ तो बैंड रहते हैं, CP1 CP2 CP3 ऐसे करके। तो वो भी यार तुमको ना ऑफिशियल नोटिफिकेशन में चेक, एनीवन हु हैज एनी इशू विद मेडिकल्स यू कैन सिंपली विजिट द ऑफिशियल DGFMS की वेबसाइट पे देख लो, या फिर ऑफिशियल नोटिफिकेशन देख लो और उससे कंपेयर करवाओ किसी डॉक्टर से जाके पूछ के, तो वो अच्छे से बता पाएगा। सर what is the minimum obstacles that one should do in order to get recommended and how to prepare for that? तो ही इज आस्किंग अबाउट इंडिविजुअल ऑब्स्टिकल। इंडिविजुअल ऑब्स्टिकल्स यार मिनिमम तो देख उसमें 10 होते हैं, तो तुमको 10 के 10 ही करने हैं, तो कुछ भी छोड़ना नहीं है। इवन इफ यू आर डूइंग इट नाइसली तो 10 के बाद तुम उसको एक्स्ट्रा भी कर सकते हो। तुमने 10 किया, फिर टाइम बचा, 3 मिनट में 10 ऑब्स्टिकल्स करने हैं। जिनको नहीं पता है वो यूट्यूब वीडियोस चेक कर सकते हैं इंडिविजुअल ऑब्स्टिकल्स के। ऑब्स्टिकल्स में जो क्वालिटीज चेक हो रही हैं वो बेसिक है, मेंटल स्टेमिना, फिजिकल स्टेमिना, उसके बाद द वे यू आर अपियरिंग डूइंग इट, तो ये सारी चीजें चेक होंगी। बहुत मुश्किल ऑब्स्टिकल्स नहीं है। करेज बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें। जो ऑब्स्टिकल्स होते हैं जिनमें थोड़ा हमें हाइट पे चढ़ना होता है, यू टू बैलेंस योर सेल्फ एंड ऑल, वहां पे कई बार बंदे घबरा जाते हैं, उनको लगता है गिर जाएंगे एंड ऑल, तो वो करेज एक इंपॉर्टेंट है, वो नहीं होना चाहिए। तो उसके लिए प्रैक्टिस, तो इसका प्रैक्टिस इफ यू आर फिजिकली फिट, एक्टिव हो फिजिकली, तो कोई इशू नहीं है। Sir, at last I would just say, as you said कि आपको कल्चरल में इंटरेस्ट था और आप ड्रामेटिक्स में बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड थे, तो सर आप चाहें तो अपने ड्रामेटिक्स के तरीके से बच्चों को क्लास टाइम मोटिवेट कर दें। यस, सो मोटिवेट तो यार यही करना है, ड्रामेटिक्स के तरीके से तो नहीं, कुछ ऐसा नहीं कर पाऊंगा मैं, बट यस जैसा कि मैंने तुम्हें बताया, अगर तुम्हें स्पेशली फौज की तैयारी करनी है, जिसकी भी, मेरे को जो प्रॉब्लम, जो जनरली बहुत सारे बंदे जो बोलते हैं कि प्रॉब्लम, कोई फेल हो गया एग्जाम में या फिर नहीं क्लियर कर पा रहा, जो मुझे सबसे इंपॉर्टेंट एक फैक्टर लगता है वो ये है कि ओवर ऑब्सेसिवनेस टुवर्ड्स द गोल। तो वो होने का, वो नहीं होना चाहिए कि तुम्हें एक ही चीज चाहिए जिंदगी में, वो मिल गई तो ठीक है, नहीं मिली तो फिर क्या होगा, वो चाहे तुम्हारा MBA का कॉलेज हो, चाहे तुम्हारी जॉब हो, चाहे कोई भी हो, तो वो मत करो। ठीक है, जैसे कि मैंने बताया, हैव एन एम, उसकी तरफ चलते रहो, और रास्ते में जो कुछ भी आ रहा है उसको एंजॉय करो। किसी भी एक चीज को के चक्कर में बाकी चीजों को होल्ड पे मत डालो। ठीक है, तो दैट इज द
I think the best advice I can give to youngsters. सर थैंक यू सर। सर आपने ज्वाइन किया हमें, बहुत अच्छा लगा और आपका एक्सपीरियंस सुन के मुझे और भी ज़्यादा मज़ा आया। और सर All right. लिटरली शायद मैं ये सपना अपनी कभी पूरा ना कर पाऊँ अपने लाइफ में, पर मैं सच But में चाहती हूँ कि हाँ, don't worry, कि वही मतलब मैंने एक बताया बार ये कोई. लाइफ जीने का मौका मुझे ज़रूर मिले। Yes, definitely. And if for some reason you are not able to do that, so ठीक है. Don't worry about that. There are other ways to live your life. So focus on that. Be happy, enjoy yourself, and yes, that's it. I would say. इससे ज्यादा और कुछ ज्यादा बहुत ज्यादा सीरियस होके मत जियो लाइफ को. बस important is that. Down the line you will realize 8-10 साल बाद कि इतना कुछ है नहीं. When you turn back to your life, अभी अभी तुम्हें 10th क्लास 12th क्लास के मार्क्स जब तुम्हारे कम रह गए हैं, ज्यादा आ गए हैं, अब तुमको क्लियर हो गया होगा ना कोई फायदा नहीं था. 10th में मार्क्स थोड़े और कम आ जाते, थोड़े और ज्यादा आ जाते, एक ही बात है. सेम वे आज से 10 साल बाद तुमको कॉलेज के बारे में लगेगा और लाइफ के बारे में लगेगा. सो अब तुम्हें फंडा समझ में आ गया है. सो जस्ट बी हैप्पी एंड एंजॉय योर लाइफ. ऑलराइट. तो या Yeah. So at last, I would like to thanks my team, SI Collegiate Club, Triple M UT chapter, Gorakhpur. Hashtag Triple M Rocks.